Good morning, students. Today we are going to study contingent interest, section 21 of Transfer of Property Act, and further the difference between vested interest and contingent interest. Student, this is the second part. In our earlier part, we dealt with what do we mean by the term vested interest under section 19 of Transfer of Property Act. What are the things which are necessary for application of vested interest while transferring the property? And today we are going to deal with the term contingent interest, which has been provided under section 21 of transfer of property, as well as we are going to see the difference between vested interest and a contingent interest. What do we mean by the term contingent interest? Now, while dealing with the vested interest, as I have already covered the thing that vested interest means the interest which is immediately created, immediately been given to a transferee, and which do not basically depend upon the happening of any particular or happening of or fulfillment of any particular condition. Whenever this particular happening of or creating of any interest depends upon the fulfillment of some condition precedent, then in that case it would be called as a contingent interest, otherwise it would be called as a vesting interest or vested interest. Now conditions, students, are of three types. If we go through the provision, what do we mean by the term contingent interest? We would certainly come to know that an interest vesting of which takes place after the fulfillment of some condition precedent. जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में मिलने वाला, यदि वो डिपेंड करता है कि हम पहले कोई कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल करें, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त में अ पर्टिकुलर कंडीशन हैज बीन इम्पोज्ड टू अस और वो कंडीशन प्रेसिडेंट के नेचर की है। कहने का मतलब है हमें पहले वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी जाके वी वुड बी इन अ पोजीशन टू गेट द राइट इन द प्रॉपर्टी। देन इन दैट केस जब हम वो कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल करेंगे तभी जाके हमको प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो लेट अस सी वंस मोर द मीनिंग ऑफ कंटीन्यूएंट इंटरेस्ट। An interest vesting of which takes place after the fulfillment of some condition precedent. Till the condition is fulfilled, the vesting of interest remains contingent. यहाँ पे ट्रांसफर से पहले हमको क्या करनी है, कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल करनी है। Students, there are three types of conditions. Firstly, the condition precedent. Second is condition collateral, and third one is condition subsequent. When we talk about condition precedent, then condition precedent means what? A condition which need to be fulfilled prior to transfer. Condition collateral means what? A condition which need to be fulfilled during the period of transfer. And last one is condition subsequent. So condition subsequent means a condition which need to be fulfilled after the transaction takes place. And this type of condition subsequent is important for the purposes of retention of that particular property which has come to us by way of transfer. For the reason, if we do not later on subsequently given condition, if we do not fulfill that particular condition, then in that case what will happen, we would not be in a position to retain that particular property with us. तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी प्रॉपर्टी में मिलने वाला इंटरेस्ट कैसा होता है, ऐसा मिलता है कि उसके पहले हमको कोई कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल करनी है, देन इन दैट केस उसे हम कहते हैं कि वो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि वो हमको कब मिलने वाला है, इमीडिएट मिलने वाला है क्या, नहीं, इट इज नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट इमीडिएटली, but we are going to get the same only on the fulfillment of some condition precedent. And this till the condition is fulfilled, और जब तक हम ये condition fulfill नहीं कर देते हैं तब तक वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहता है, कॉन्टिंजेंट रहता है। यानी कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। नेक्स्ट इज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इट इज सेड दैट अ पर्सन गेट्स अ कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसा बोला गया है कि फॉलोइंग तरीके की दो सिचुएशंस में पर्सन को मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट होता है। कौन कौन से इसमें, व्हेन the transfer of property and the transfer of interest in that particular property depends upon the happening of specified uncertain event.
मतलब कि मुझे जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलने वाला है, यदि वो डिपेंड करता है ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट। व्हाई वी आर सेइंग अनसर्टन इवेंट? क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये इवेंट होगा भी या नहीं होगा। तो ऐसा कोई इवेंट जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे किसी इवेंट के होने या फिर न होने के ऊपर हमको मिलने वाला प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, देन इन दैट केस उस तरीके के इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे? कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट मिलेंगे कहेंगे। अगर मान लीजिए इवेंट सर्टन होता, मतलब मस्ट नेचर का होता, तो वो कौन सा इंटरेस्ट कहलाता? वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाता। भले ही फिर हमारा जो एंजॉयमेंट है भले ही वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड हो जाए, बट हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या कहलाता? वेस्टेड कहलाता। बट क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन कैसी है, एक हमारी जो कंडीशन हमको बोली है उन्होंने फुलफिल करने के लिए, वो किसी एक ऐसे अनसर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा इवेंट है कि जो टेक प्लेस भी कर सकता है, नहीं भी टेक प्लेस कर सकता है। ऐसे वक्त में whenever under transfer of property act, the vesting of interest in any particular property if depends upon the happening of a specified uncertain event, but the event must be specified event। कैसा होना चाहिए? सामने वाले ने यानी ट्रांसफरर ने बताया हुआ होना चाहिए। therefore the word specified is used over here when the vesting of interest depends upon the happening of a specified uncertain event, then in that case only on the happening of that particular event or on the fulfillment of that particular condition the interest would be vested in us, otherwise we would consider the same to be a contingent interest. Next is when the getting of interest in the particular property depends upon the specified uncertain event does not happen। यानी अगर मुझे मान लीजिए प्रॉपर्टी में मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, यदि वो किसी ऐसी कंडीशन प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है जो कि ये कहता है कि स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट नहीं होगा तो ही जाके प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलेगा, देन इन दैट केस मुझे प्रॉपर्टी में कब इंटरेस्ट मिलेगा? जब वो इवेंट नहीं होगा, द नॉन हैपनिंग ऑफ विच was a condition for vesting interest and the event becomes impossible to happen। और वाकई में वो जब event impossible to happen हो जाता है, तभी जाके I'll be getting a right in that particular property। Now let us see, now we have seen two conditions, abhi we'll go through some other examples of the same। Now let us see first क्या कहता है कि in case of contingent interest, the interest becomes vested only when either of the condition is fulfilled। अब आपने देखा कि एक अनसर्टन इवेंट जो कि स्पेसिफाइड है उसके होने पर, और दूसरी सिचुएशन हमने देखी स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट के नहीं होने पर। दोनों भी इसमें हमको कैसा मिलता है? बेसिकली कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट मिलता है। लेट अस सी एन एग्जांपल। Rohan makes a gift to Rajasi provided Ram survives the age of 22 years। देखिए बेटा, डेथ तो सर्टन है, बट इयर्स कितने जिएगा, वो कितने नहीं जिएगा, ये कैसी है? अनसर्टन है। तो यहाँ पे रोहन मेक्स अ गिफ्ट टू राजसी, रोहन जो है वो गिफ्ट कर रहा है राजसी को, प्रोवाइडेड, लेकिन राम जो है वो सरवाइव करना चाहिए द एज ऑफ 22 ईयर्स। यानी जब तक राम 22 साल का नहीं हो जाता तब तक राजसी का जो इंटरेस्ट है वो कैसा रहेगा? कॉन्टिंजेंट रहेगा। ठीक है, तो रोहन मेक्स अ गिफ्ट टू राजसी, रोहन जो है वो गिफ्ट कर रहा है प्रॉपर्टी का, किसको? राजसी को, प्रोवाइडेड, लेकिन रोहन क्या बोलता है? लेकिन ये गिफ्ट तुमको कब मिलेगा? प्रोवाइडेड राम जो है वो 22 ईयर्स तक का होने तक जीना चाहिए। वैसे वक्त में राजसी कैन नॉट से कि मुझे वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया है, राजसी को वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिला है। यहाँ पे राजसी का जो इंटरेस्ट है वो कैसा है? कॉन्टिंजेंट है, क्योंकि एक स्पेसिफाइड यानी बताए हुए अनसर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड है। अनसर्टन क्यों हमने बोला? क्योंकि यहाँ पे जो डेथ है वो तो सर्टन होती है, पर ये जो एज है बेसिकली इतने साल तक, अब जरूरी थोड़ी ना है कि इतने साल तक वो जिए ही, तो इतने साल तक जीना ये जो टर्म रखा हुआ है दैट इज अनसर्टन। therefore Rajasi's interest is contingent। next is where Rohan makes a gift to Rajasi provided Ram does not survive the age of 22 years। दूसरे एग्जाम्पल में भी रोहन जो है वो राजसी को गिफ्ट दे रहा है, लेकिन शर्त ऐसी है कि राम जो है
वो 22 साल का होने तक नहीं जीना चाहिए। तब अगर मान लीजिए जब तक कि राम 22 साल से पहले मर नहीं जाता तब तक इंटरेस्ट ऑफ राजसी जो है वो कैसा है, बेसिकली देखा जाए तो कॉन्टिंजेंट है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में जो भी अभी तक हमने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन come to conclusion that these are the characteristics of basically contingent interest. Now what are these characteristics? Firstly, it is a transferable interest. Again, it is a transferable interest. It is not heritable. ये क्या नहीं है, लेकिन heritable नहीं है. It means on the death of a person having contingent interest, his interest does not pass to his legal heirs. The legal heirs of such transferee do not get any interest. क्योंकि ये हेरिटेबल नहीं है और इसीलिए अगर मान लीजिए पर्सन की डेथ हो जाती है, जिस भी पर्सन को कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट मिला है उस पर्सन की यदि डेथ हो जाती है तो उस पर्टिकुलर पर्सन की ये जो डेथ से उसको मिला हुआ जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है, जिसके पास ऑलरेडी जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट था, वो पर्टिकुलर पर्सन से उसके लीगल हेयर्स को ये कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट पास नहीं होगा। एंड हम बोल सकते हैं कि लीगल हेयर्स जो हैं उसको ट्रांसफरी के किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर वो इंटरेस्ट कैसा है, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट इज डेथ इज नॉट एन अनसर्टन इवेंट बट सर्वाइवल और एट द डेथ ऑफ अनदर इज एन अनसर्टन इवेंट। हमने इसके पहले देखा कि डेथ जो है वो हमेशा सर्टन इवेंट होता है, होना ही है, कंपल्सरी मस्ट नेचर का है। देयरफॉर यहाँ बोल रहे हैं कि डेथ इज नॉट एन अनसर्टन इवेंट, ये अपने आप में अनसर्टन नहीं है, इट इज सर्टन। बट सर्वाइवल एट द डेथ ऑफ अनदर, लेकिन उसके जीने, उसके रहने तक वो जिंदा हो रहना चाहिए। अगर इस तरीके की कंडीशन हम इम्पोज करते हैं कि ए के जिंदा रहने तक बी जिंदा रहना चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। बी की अपनी एक एज है, बी हो सकता है उतना न जिए या उससे ज्यादा जिए। देयरफॉर सर्वाइवल जो है एट द डेथ ऑफ अनदर इज एन अनसर्टन इवेंट। नेक्स्ट इज द चार्ज ऑफ एन हेयर अपीयरिंग टू सक्सीड टू अ पर्सन एज हेयर और similar possibilities of a like nature are not contingent interest within the meaning of this section. तो यहाँ पे इट इज अ चांस ऑफ एन हेयर अपीरेंट, यानी हमको जो लगता है कि ये लीगल हेयर हो सकता है, तो अ चांस ऑफ अ लीगल हेयर, लीगल हेयर अपीरेंट टू सक्सीड, जो बेसिकली सक्सीड करने वाला है किसी पर्सन को एज अ हेयर करके टू अ पर्सन एज अ हेयर, और सिमिलर पॉसिबिलिटीज ऑफ अ लाइक नेचर, और उसी तरीके से अलग तरीके की जो सिमिलर पॉसिबिलिटीज हो सकती है सेम नेचर की, वो भी अपने आप में क्या नहीं कहलाएगी, आर नॉट कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के तहत उसे हम कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, फॉर द रीजन दैट कि लीगल हेयर्स जो हैं उनको क्या रहता है, उनको तो डेफिनेटली जो पर्सन है उसकी डेथ के बाद में एज अ लीगल हेयर अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट रहता है। तो यहाँ पे जो लीगल हेयर है, बेसिकली जब हम कहते हैं कि उसे अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट रहता है, तो उसका जो राइट है सिर्फ वो कैसा रहा, वेस्टेड रहा, बट पोस्टपोन्ड रहा, और इसीलिए इसको हम कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट नहीं बोल रहे हैं। Next is, let us see what is the difference between vested interest and contingent interest. Vested interest को अगर हम देखते हैं तो it is a interest which is created without specifying the time, और या फिर immediately या फिर on the happening of certain specified event। अगर ये तीनों भी कंडीशन होती है, कहने का मतलब है एक तो टाइम स्पेसिफाई किया है, दूसरा हमने बोल दिया इमीडिएटली, और तीसरा हमने बोल दिया है कि ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टन स्पेसिफाइड इवेंट, यानी इवेंट जो है वो मस्ट नेचर का है, it is depend upon the happening of a certain specified event, then in that case such kind of interest would become to be a vested interest. But when we see the contingent interest, what is to be, what is given here, it is to take effect only on the happening of specified uncertain event. Here the vesting of contingent interest depends upon the happening of or not happening of uncertain event. So it is to take effect only on the happening of a specified uncertain event, or if a specified uncertain event does not happen. Now let us see again what is there in the vested interest. Vested interest creates immediate right in the property, though the enjoyment may be postponed to a future date.
यानी इमीडिएट राइट इन द प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता है, भले ही जो हमारा एंजॉयमेंट का जो बेसिकली ड्यूरेशन है या एंजॉयमेंट जो है वो हमारा पोस्टपोन्ड हो सकता है फ्यूचर डेट के लिए, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन। और यहाँ पे बेसिकली हमें मिलने वाला जो राइट है वो डिपेंड नहीं करता है किसी कंडीशन के फुलफिलमेंट होने पर। कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या होता है? कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड होता है कंडीशन के फुलफिलमेंट करने के बाद में ही वो हमको मिलता है। अगर हमने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो हमारा इंटरेस्ट हमको नहीं मिलता, इंटरेस्ट फेल हो जाता है। नेक्स्ट इज वेस्टेड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स द पोजेशन। अगर मैंने प्रॉपर्टी सामने वाले को ट्रांसफर करी, मैं ट्रांसफरर हूँ, वो ट्रांसफरी है, लेकिन यदि उसने प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया ही नहीं और उससे पहले उसकी डेथ हो गई तो उसको क्या मिलेगा? वेदर उसको प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं, इट वुड बी डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स द पोजेशन। बट सो फार एज कॉन्टिजेंट इवेंट इज कंसर्न, ये क्या बोलता है? वैसे भी देखा जाए तो इट कैनॉट टेक इफेक्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रांसफर इज डेथ बिफोर द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। जब मैंने ट्रांसफरर होने के नाते प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, बट मैंने साथ ही कंडीशन प्रेसिडेंट भी डाल दिया था। अगर मान लीजिए कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल करने से पहले ही ट्रांसफरी की डेथ हो गई, देन इन दैट केस वहां पे वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कंडीशन प्रेसिडेंट उसने फुलफिल कर दी तो उसको मिला हुआ इंटरेस्ट कैसा हो गया? उसको मिला हुआ इंटरेस्ट अब कॉन्टिजेंट रहा क्या? नहीं, इट हैड बिकम नाउ वेस्टेड इंटरेस्ट। देन इन दैट केस वेस्टेड इंटरेस्ट मिलने के बाद में अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट कहीं पे भी एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज वेस्टेड इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल। वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफरेबल भी है, हेरिटेबल भी है। अगर ट्रांसफरी की डेथ होती है बिफोर द एक्चुअल एंजॉयमेंट, देन इन दैट केस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो पास हो जाएगा उसके हेयर्स को। लेकिन जब हम कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये एक तरीके का ट्रांसफरेबल जरूर है, बट इट इज नॉट हेरिटेबल। इफ द ट्रांसफरी ऑफ द प्रॉपर्टी डाइज बिफोर ऑब्टेनिंग द पोजेशन, प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने से पहले ही यदि ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है, then in that case the contingent interest fails and do not pass on to his heirs, और उसके लीगल heirs को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। Now again last point if we take into consideration, the vested interest जो है वो एक present और immediate right होता है। भले ही ऐसा हो सकता है कि उसमें प्रॉपर्टी का जो एंजॉयमेंट है वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो जाए, लेकिन so far as contingent interest is concerned there is no present right, there is only a promise to give a right which depends upon the fulfillment of a condition. Now students, whatever we have studied, on the basis of that हमारी clear understanding के लिए I have prepared this chart. Take into consideration the following things. Firstly, interest दो प्रकार के होते हैं, एक होता है vested interest और एक होता है contingent interest. vested interest जो है वो सेक्शन 19 से लेकर 22 तक प्रोविजन दिया गया है। कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट जो है वो सेक्शन 21 से लेके 24 तक इसका प्रोविजन दिया गया है। अगर मैं बात करती हूँ वेस्टेड इंटरेस्ट का, तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसमें हमारे पास में पोजेशन हो भी सकता है प्रॉपर्टी का, नहीं भी पोजेशन दे सकता है टाइम बिंग के लिए हमें। अगर मान लो हमें प्रॉपर्टी का पोजेशन टाइम बिंग के लिए नहीं भी दिया है तो भी उसमें वो क्या कर सकता है? हमारा एंजॉयमेंट पोस्टपोन कर सकता है, साथ ही साथ प्रायर इंटरेस्ट इंटरवेंशन के नाम पे क्रिएट किया जा सकता है, और साथ ही साथ हमें वेस्टेड इंटरेस्ट देने के बावजूद भी डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम ग्रांट किया जा सकता है या डायरेक्ट किया जा सकता है कि हम उस प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाली इनकम को एक्यूमुलेट करें। दिस कुड बी हैपन अंडर वेस्टेड इंटरेस्ट। अगेन there are two type of interest: vested interest, contingent interest. When we talk about vested interest में हमारे पास प्रॉपर्टी का पोजीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मानो हमारे पास में प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं है तो भी वहां पे प्रोविजन होगा पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट का, वहां पे इंटरवेंशन होगा प्रायर इंटरेस्ट का, एंड साथ ही साथ वहां पे प्रोविजन हो सकता है एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम का। So this was actually completely we have dealt with what do we mean by the term vested interest and what do we mean by the term contingent interest. Thank you students for attending this session. We have completed both the part 1 as well as part 2, and I hope this is going to benefit you for your exams. Thank you so much for attending this session. Thank you.